ठीक है, is taken a thin gold foil, इसका न्यूक्लियस है, ये शेल्स हैं, different shells which are present, और भी shells होंगे gold है तो. There is a photographic plate. So the photographic plate made up of zinc sulfide. So whatever the photographic plate is, it has a property, na? When the light falls on it, it glows. So when the alpha rays are falling on the photographic plate, they will glow. So I've written that they are going to show the glow here. Most of the rays will pass straight, around 99%. Passed straight without any deflection. Very few are deflected. So we can write that the very few are deflected. Very few deflected. And we can say that very few of them, very few of them, that is 1 out of 20,000, I've written that they are reflected back. 1 out of 20,000 is reflected back. That is the Rutherford experiment. The thickness of the gold foil, thickness of gold foil is 0.1234 centimeters. Now we have to discuss the observations. Alpha particles are the alpha rays, they are doubly ionized helium ions. We already know that. Now the observations, what we have to write, what he observes. He divided nucleus into two parts. He divided the atom in the two parts. So he divided atom in two parts. Atom in two parts. One is called the nucleus and the other is called the extranuclear part. So according to him, atom is generally divided in two parts. One is the nucleus, other is the extranuclear part. Extranuclear part. So one part is nucleus part and the other part is other part, then the nucleus is called extranuclear part. He is the very first scientist who is talking about the nucleus. So we'll say that अगर हमसे पूछेंगे who discovered that atom has nucleus, we'll say that it is Rutherford. Well, first we'll discuss about the nucleus, then we'll say that the size of nucleus is very small. Size of nucleus is very small. Present at the center. At center. Containing positively charged particle protons. ठीक है? उसके बाद next लिख सकते हैं. The positive charge. The positively charged particle protons are present in the nucleus. Particle protons are present in nucleus. Present in nucleus. Almost entire mass of atom is present inside the nucleus. Almost entire mass of atom is present inside the nucleus. Inside the nucleus.
The entire mass of atom is present inside the nucleus. What he says that the size of nucleus varies from the size of nucleus varies from 10 to the power of minus 12 to 10 to the power of minus 13 centimeters, whereas centimeters, whereas size of atom varies from 10 to the power of minus 8 to 10 to the power of minus 10 centimeters. This was his observation. This was his observation. So from his observation, we are able to write that if we are talking about the size from his observations, that what will be the ratio of the size of atom with respect to size of nucleus. Let us check. Ratio size of atom with respect to size of nucleus. Generally, we say that the size is camera ऊपर कर लो. the size is, we say that चलेगा एक मिनट रुकना है. The size is nothing but we are talking about, because atoms are spherical in nature now, so we are talking about the spherical shape. तो अपन कहेंगे भाई रेशियो लिख लेते हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ एटम divided by volume of nucleus. If they are spherical in shape, we'll write that this will be 4/3 pi r cube. That is atomic size, and this will be 4/3 pi r cube, the size of nucleus. The size of nucleus. So we can write that radius of atom is, we can say that suppose this is the radius of atom, that is 10 to the power of minus 8. हम maximum size ले लेते हैं atom का. So maximum variation लेने के लिए हम maximum size of atom ले लेते हैं और minimum size of nucleus ले लेते हैं, so that we get the maximum variations. ये तो cancel हो जाएगा, so we'll get that 10 की power minus 8 to the power of 3 divided by 10 to the power of minus, we can write that 13 to the power of 3. If we solve it, what we get? Minus 8 to the power of 3 means minus 24, and minus 13 to the power of 3 means minus 39. If we solve it, we'll get 10 to the power of 15. We check the ratio. Means the size of atom is 10 to the power of 15 times the size of nucleus. So size of atom is 10 to the power of 15 times than the size of nucleus. So the size of nucleus is very, very less as compared to the size of atom. It is 10 to the power of 15 times. It will be just like that कि मतलब अपन जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में सेंटर में एक छोटा सा सर्किल बना दें और फिर उस सर्किल को 10 to the power of 15 टाइम्स करेंगे तो it will be almost equal to the size of room. मतलब अगर हम रूम में है तो उस रूम में एक छोटा सा सर्किल बनाते हैं, वो न्यूक्लियस होगा, बाकी सारा रूम जो होगा वो एटम होगा. It will be relatively, we are talking like that. And that was the reason we are talking about कि most of the rays pass straight, almost 99%, because रूम में अगर सेंटर में एक छोटा डॉट बनाने वाले हो, आप छोटा सा सर्किल बनाने वाले हो, तो ऑब्वियसली बात है बाकी सारा पार्ट तो हम खाली एज्यूम करेंगे. तो अगर वो खाली होगा तो ऑब्वियसली बात है मोस्ट ऑफ द रेज विल पास स्ट्रेट, ओनली फ्यू आर डिफ्लेक्टेड जो न्यूक्लियस के पास से जाएगा, बिकॉज न्यूक्लियस में देयर इज अ प्रोटॉन एंड हीलियम आर positively charged.
So due to that positive charge, it repels with this positive charge. That's why they are deflected. Those rays which are passing near from the nucleus, they are deflected, and the ray which is in horizontal with respect to this nucleus, that is reflected back. That was the reason the alpha rays cannot collide with this. The reason is because both are positively charged. Before collision, the velocity of positive charge should become zero, because the two positive charge generally they doesn't collide, right? Na? Negative positive hoga to collide karke they will get the neutralized, but not the two positive charge. So we'll say that from this ratio, what is observed is what is the size of the atom is 10 to the power of 15 times the size of the nucleus. From his observation, what we are studying. From these observation, what he says that to calculate a radius of any atom, of nucleus of any atom, nucleus of any atom. So radius of nucleus of any atom, we can write that the radius of the nucleus is equal to, the radius of the nucleus is equal to, that is 1.33. Here we have calculated this number, that is a range 1.33 to 1.41 like that. But we can use directly this to the power of minus 13 into a to the power of 1 by 3 centimeter. So where a is a mass number, because nucleus contain nucleons which is mass number. अगर ज्यादा nucleons होंगे तो size भी थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए. That's why where a is mass number. So mass number, we all know that what it is. A is the mass number. So this is the observation what he has observed from his calculations. These are the observation what he has given. Now we can add some more observation from our side, which can be used to frame the questions. Right now, these are his observations. Now we can add a few more observation from our side, which can be used. The one thing is, we know that electrons are revolving around the nucleus and it is negatively charged. So it may be asked that alpha particle पे positive charge होता है, electron पे negative charge होता है. So why doesn't the electron will absorb these alpha particle and they will stop the rays? So we can say that the mass of alpha particle is almost 10,000 times more than the mass of electron. So due to the difference in mass and the speed of alpha particle is very high. So due to the difference in mass, the alpha particle will either it will displace the electron or it will eject the electron. It can ionize the electrons. So the alpha particle will not be absorbed by electron because the mass of electron is 10,000 times less as compared to the mass of alpha particles. Mass of electron, we all know that. What is the mass of electron? The mass of electron is 9.1 into 10 to the power of minus 31 kg, whereas the mass of alpha particle is helium is 4 AMU, so 1.67 into 10 to the power of minus 27 kg. So this value is almost 10,000 times smaller than the value of helium. So that's why electrons are displaced from their position when the alpha rays pass. So, Sir, hmm? sir, what is the meaning of alpha particles can ionize the electron? The meaning of ionize the electron, I'm not telling you ionize the electron. I'm just telling कि alpha particle can ionize atoms. मतलब वो electron को eject कर देंगे.
they will remove electron from the valence shell of the atom. So that is called ionization of atoms. Okay, sir. So, sir, it will become a cation, right? Obviously. Okay, sir. So the alpha particle, the electron can't absorb, can't stop alpha particle because mass of alpha particle is nearly 10,000 times greater than electron. So it will be, mass will be 10 to the power of 4 times greater than electron. That's why it cannot stop. So we can have this question also, why alpha particle cannot be absorbed by the electron, or why the electron cannot stop the alpha particle. Another question we can write from this. Is it necessary to take a gold file? Or I will say that मेरी मर्जी में तो एल्यूमिनियम लूंगा, आपको क्या करना है, जो करना है कर लो. तो अपन कहेंगे देखो भाई, आपकी मर्जी तो ठीक है, अल्फा पार्टिकल आप ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्फा पार्टिकल हैं और आप गोल्ड की जगह क्या ले सकते हो, गोल्ड की जगह आप क्या ले सकते हैं, एल्यूमिनियम foil. एल्यूमिनियम फॉयल ले सकते हैं, आप ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट एल्यूमिनियम फॉयल, द एल्यूमिनियम एटम जो होगा, दैट कंटेन द न्यूक्लियस कंटेन, बिकॉज़ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस कंटेन ओनली 13 प्रोटॉन, whereas the gold nucleus contain that is 47 protons. So what we'll say that not only 47, 47 plus 32, it is 47 plus 32, it is 90, like that, है ना. 47 तो सिल्वर होगा. तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है. इतना ज्यादा प्रोटॉन होने के बाद भी अगर इसमें थोड़ा सा ही डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर 13 प्रोटॉन होता तो डिफ्लेक्शन तो नेग्लिजिबल होता. भाई हमको डिफ्लेक्शन ही तो पढ़ना है ना, उसी से तो हमको पता चलेगा देयर इज अ न्यूक्लियस. पर डिस्कवरी के लिए हम कहेंगे ठीक है, आप एल्यूमिनियम ले लो, बट द डिफ्लेक्शन विल बी वेरी लेस देन, बिकॉज़ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस विल बी वेरी स्मॉल. Size of the nucleus will be very small and there is only 13 proton. अगर 13 प्रोटॉन होंगे तो उसका रिपल्शन विद द अल्फा पार्टिकल विल बी वेरी वेरी लेस. सो द डिफ्लेक्शन, यहाँ पर जो 1% में से हम डिफ्लेक्शन भी बता रहे हैं और रिफ्लेक्शन भी बता रहे हैं, then that deflection will also decrease. अगर वो डिफ्लेक्शन बहुत नेग्लिजिबल होगा और ये मान लो ऐसे गया, तो अपन को लगेगा डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, वो तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही चलेगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन बहुत कम होगा. जितना अच्छा डिफ्लेक्शन होगा हम उतना अच्छा पढ़ सकते हैं, बिकॉज हमारे लिए उतना इजी ऑब्जर्वेशंस होंगे ना, कि डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब यस आई एम एबल टू टेल देयर इज अ न्यूक्लियस बिकॉज दैट इज डिफ्लेक्टिंग द अल्फा रेज. लेकिन अगर डिफ्लेक्शन बहुत कम होगा तो हमारे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए हम चाहेंगे कि इसमें कम से कम ऐसा एटम आप अज्यूम करो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन थोड़े ज्यादा. सो we can use that in place of, अगर अपन चाहें तो गोल्ड की जगह we can use that, सिल्वर यूज कर सकते हैं, कॉपर यूज कर सकते हैं, सिल्वर यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम यूज कर सकते हैं. So the metal which can be converted into this much thickness, one thing is there. Aluminum is very difficult to be converted into this much thickness. So हमको एक तो मेटल वो चाहिए जो इस थिकनेस में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी बहुत अच्छी हो. दूसरा, number of protons should be large. So we can use metal, any metal in place of gold, but it must have high malleability and ductility, as well as the number of proton in the nucleus should be very high. Because more the deflection, more easy we are able to study that there is a nucleus inside the atom. So
we can use any atom, any metal foil. प्रेफर कर रहे हैं अपन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एक्सेट्रा, but which has high malleability and ductility. सर बट मैलिएबल होना जरूरी क्यों है, मतलब शीट्स में थिन क्यों होना जरूरी है, उसे क्या वो पता इसलिए चलता है? कि हम जो शीट लगाएंगे वो शीट से अल्फा पार्टिकल को पास होना चाहिए, और पास होने के बाद उनका इधर जो इसको स्ट्राइक करेंगे तो अपन को ग्लो दिखना चाहिए। अगर वो ग्लो दिखेगा तो ही अपन कहेंगे कि अल्फा पार्टिकल पास कर रहे हैं, नहीं तो कैसे बताएंगे। हाँ सर, ओके सर, गॉट इट। सो विच हैज हाई malleability and ductility. सर नॉन मेटल नहीं ले सकते? नॉन मेटल्स लेंगे तो पहले ही मेल्ट हो जाएगा, शीट कहां से आएगा। ओके सर। High number of proton in nucleus. तो इस टाइप के मतलब क्वेश्चन अपन से पूछेंगे एग्जाम में, व्हाई वी कैन नॉट टेक एल्यूमिनियम, ठीक है, विल राइट दैट, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन टेकिंग द एल्यूमिनियम, इस टाइप से। और देखता हूँ कोई ऑब्जर्वेशन में अपन से कुछ और पूछ सकते हैं तो, कि भाई और क्या अपन से पूछ सकते हैं इसमें ऑब्जर्वेशन में, वो सारे क्वेश्चंस में देख रहा हूँ। सर हाँ बोलो। सर जैसे आपने बोला ना कि कोई कम प्रोटॉन्स वाला नहीं ले सकते, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, तो सर उस केस में जब भी अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली न्यूक्लियस पे उनका ट्रेजेक्टरी होगा तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे या रिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे? नहीं होंगे ना, अगर कोई छोटा पार्टिकल भी लिया ना अपन ने एल्यूमिनियम जैसे, तो उसमें रिफ्लेक्शन जैसे अभी गोल्ड में 1 आउट ऑफ 20,000 आ रहा था, तो उसमें और कम? हाँ 1 आउट ऑफ 50,000 हो जाएगा या 80,000 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो फिर हमारे लिए बट पढ़ना उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। दैट्स व्हाई हम ऐसा एटम चूज करेंगे जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो हम इजीली पढ़ पाएंगे, अच्छा ये डिफ्लेक्ट हो गया, इतने सारे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, हाँ न्यूक्लियस है वहां पर, दैट इज। बट सर फिर भी उसका न्यूक्लियस तो स्ट्रांग रहेगा ना कि वो रिफ्लेक्ट कर सके, कोई डायरेक्टली उस पर आ रहा है? हाँ करे मतलब होगा, लेकिन एक डॉट और एक सर्कल, मतलब ऐसा न्यूक्लियस है तो ज्यादा, या ऐसा होगा तो ज्यादा होगा, तो किसको पढ़ना ज्यादा इजी होगा, तो अपन कहेंगे ऐसे, वो राइट साइड वाला। इसलिए अपन। ओके सर। द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, nuclear part contain electron in a fixed orbit, electron revolving in the fixed orbit, in fixed orbit. That is, so we compare atom with solar system. There is a lots of difference in solar system and atom, but he was the scientist who has compared the atom with the solar system, comparing that the nucleus like a sun and the planets like electron revolving around the nucleus. But there's a lots of difference. Even with the gravitational force, even with the number of planets in one orbit is only one, but the electrons are more than that, so there is a lots of difference in that. This was his observation about the atom, so under the extranuclear part. Now we'll talk about that. What are the drawbacks? भाई रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या ड्रॉबैक्स था वो देखते हैं। So drawbacks. The drawback is, वैसे तो अपन क्या करेंगे बाद में जो मॉडल्स पढ़ेंगे उन मॉडल्स का जो इसका जो मॉडिफिकेशंस होगा वो सारे इसके ड्रॉबैक में डाल देंगे।
कि ये मतलब जो मॉडिफिकेशन है वो नहीं बता पाया, ठीक है वो ड्रॉबैक है, ओके चल गया, कोई बात नहीं। तो इसके बाद वाले जितने भी मॉडल अपन पढ़ेंगे वो उसके ड्रॉबैक, उसके मॉडिफिकेशंस इसके ड्रॉबैक बना देंगे कि ये इसका ड्रॉबैक था, ठीक है। हमें ड्रॉबैक लिखने थे, हमने इंक्रीज कर दिया नंबर्स। द मेजर ड्रॉबैक इज he could not explain the stability of atom. फिर फायदा क्या? He could not explain the stability of atom. अब इससे बड़ा और क्या ड्रॉबैक हो सकता है? वो एटम का स्टेबिलिटी प्रूफ नहीं कर पा रहे बेचारा। He could not explain the stability of atom because he is not able to explain that electron revolve around the nucleus in fixed orbit. वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। But he explained that electron are revolving around the nucleus, but he could not explain कि वो fixed orbit में revolve कर रहे हैं। According to classical mechanics, क्लासिकल मैकेनिक्स से अपन क्या बताते हैं कि देख भाई, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उसके अराउंड कोई दूसरा अपोजिट चार्ज पार्टिकल उसके आसपास मूव कर रहा है, अगर मूव करेगा तो अपनी एनर्जी लूज करेगा भाई। अगर ऑब्वियसली बात है, मूव करना है तो एनर्जी लूज करोगे, आप भी मूव करोगे तो एनर्जी लूज करोगे। अगर मूव करोगे तो एनर्जी लूज करोगे, और एनर्जी लूज करोगे तो इन दोनों में अट्रैक्शन बढ़ेगा। भाई अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी एनर्जी लूज होगी, एनर्जी लूज होगी तो उसका, अगर कोई अपोजिट चार्ज पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड द पार्टिकल, कोई भी, right now opposite charge particle is revolving around the particle, then that opposite charge particle will continuously lose its energy. If it loses energy in form of emissions, तो फिर attraction बढ़ेगा, दोनों में attraction बढ़ेगा तो distance कम होगा, distance कम होगा तो a time will come when the electron will fall into the nucleus, and if the electron fall into the nucleus, उसने ये तो बताया कि electron is revolving around the nucleus, but not able to explain that कि they are revolving in a fixed orbit. Any charge particle revolving around opposite charge particle will continuously lose its energy. So distance between them continuously decreases. A time will come when the electron will fall into the nucleus. Then the electron will fall into nucleus. और अगर electron fall करेगा nucleus में, then it doesn't exist. Atom doesn't exist. Electron revolves. Yes, अगर electron revolve होगा तो उसमें centrifugal force होगा, but attraction भी तो है nucleus में. So yes, there is a centrifugal force. There will be a centrifugal force, no doubt. So that is the major drawback. ठीक है,
Now let us check the application. सर वेट डोंट, ठीक है, लिखो लिखो आराम से, कोई बात नहीं। सर अब कर दिया आपने। अच्छा ये वाला लिखना था, सर लास्ट पॉइंट 10th। लास्ट पॉइंट, अरे यार बाद में लिख लेना। मैं डिक्टेट कर दूं? यस सर। सर सर द मैंने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वो वाला था। हाँ हाँ वही, सर मैंने लिखा the nuclear extra, the extra nuclear part contain electron. The extra nuclear part contain electron. Contain electron revolving in fixed orbit. Bracket में लिखो, so he compared the atom with solar system. ठीक है, तुम लोग जैसे ओके वर्चुअल सर, क्लास में थैंक पढ़ यू। रहे हो, तुम लोग जैसे वर्चुअल क्लास में पढ़ रहे हो ना, ऐसे लाइव क्लास में भी स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे हैं। उसी की कॉपी से बता दिया। ठीक है, so we'll write that कि भाई what is the, अब अपन बात कर रहे थे एप्लीकेशन। अपन कहेंगे इसमें क्या एप्लीकेशन लेके, अपन कहेंगे ठीक है ना, कोई न्यूक्लियस ले लो एटम को और जरा बताओ उसको कि अल्फा पार्टिकल उसकी तरफ फेंक के क्या होगा, उसकी तरफ अपन अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, तो चलो बम्बार्डमेंट करके और फिर अपन देखते हैं क्या करना है अपन को। ठीक है, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा। अब इसको खुद भी बेचारे को नहीं पता था, इसने कितना सारा पार्ट बता दिया। अब इसका ही काम यूज करके ना बोर को नोबेल प्राइज मिल गया था। इसको भी मिला था, ऐसा नहीं इसको नहीं मिला था, इसने बहुत काम किया है फिजिक्स सर में भी, पर बहुत बोर काम। को नोबेल प्राइज उसी स्पेसिफिक चीज के लिए मिला था ना, किसको? नील्स बोर को, हाँ फॉर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो हाँ हाँ, बेसिकली इसी का काम रदरफोर्ड था का वो, सारा काम तो था। इसी का था यार, हाँ सर। काम तो इसी ने किया था सारा। उसने तो सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया था। क्या उसने एक्सप्लेन, क्या बचा क्या था एक्सप्लेन करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन क्यों रोटेट कर रहा है फिक्स्ड ऑर्बिट में, बस। चलो अपन इसका एप्लीकेशन देखते हैं। फिर अपन एक, अगर एप्लीकेशन समझ में आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा। फिर समझ में तो आएगा ही, अपन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं इसको, अरे इसको भी हटा दिया फिर मैंने, थोड़ा जल्दी हटा दिया मैंने ना। चलो भाई ठीक है, वो ड्रॉबैक था उसका। अब एप्लीकेशन में अपन क्या करते हैं भाई, ऐसे देख लेते हैं। ये मान लो गोल्ड का न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज, एप्लीकेशन बना लेते हैं अपन। अपन को गोल्ड का एटॉमिक नंबर गिवन है, एटॉमिक नंबर हमेशा अपन Z से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज हमेशा इक्वल होता है ना। इसलिए अपन हमेशा चार्ज को इलेक्ट्रॉन से ही बता देंगे ताकि अपन को पता रहेगा वो इलेक्ट्रॉन है। भाई दोनों का वैल्यू यही होती है, इलेक्ट्रॉन होता है तो अपन नेगेटिव साइन लगा देते हैं, प्रोटॉन में पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो Z होता है, और E अपन ने चार्ज बता दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दूर से अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, इधर दूर दूर से अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया। अच्छा पता, इसके पहले मतलब तुम लोग इसके बाद फिर लिख लेना, यहाँ पर मैं कुछ कुछ ऐसे लिख देता हूँ, फिर तुम लोग लिख लेना। मैं कुछ फॉर्मूले जानना चाहता हूँ, है ना, बाद में लिख लेना, पहले अपन ये देख लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ फॉर्मूले जो अपन ने फिजिक्स में पहले से पढ़े हुए हैं वो जानना चाहता हूँ। अच्छा बताओ, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे अपन? हाफ mv²। ऐसे लिखेंगे, हाँ। और पोटेंशियल एनर्जी को? mgh। mgh।
ठीक है भाई, पोटेंशियल एनर्जी को अपन ने लिखा mgh, और पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर एटम। तो अपन पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ऐसे भी m इंटू h, m और g क्या होता है, फोर्स होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स ना, और h हाइट जो है वो डिस्टेंस होता है। अपन चार्ज को पढ़ रहे हैं तो मैं आपको ऐसे पूछ लेता हूँ, कोलम्बिक फोर्स, कोलम्बिक फोर्स फॉर द चार्जेस। तो अपन क्या कहते हैं भाई, देखो अगर मेरे पास दो चार्ज के बने, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, तो इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग इन दीज, तो अपन कहेंगे देखो भाई, फोर्स जो है ना, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये कूलम्बिक फोर्स पढ़ा अपन। सर ये कूलम्ब्स लॉ ही तो है ना? बिल्कुल वही है, कूलम्ब्स लॉ ही बता रहा हूं मैं, ठीक है। अपन ने मास के फॉर्म में भी पढ़ा, m1 m2 मासेस हैं, डिस्टेंस r है, तो अपन ने लिखा m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। कांस्टेंट ले लेते हैं, तो अगर मैं कांस्टेंट ले लेता हूं तो अपन कहेंगे फोर्स विल बी इक्वल टू k, कांस्टेंट हो गया, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ऐसे ये दो चार्जेस हैं, और अगर अपन को पता है तो अपन इसमें ऐसे भी लिख सकते थे, देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लिखना है ना, तो मैं ऐसे लिख लूंगा, फोर्स क्या है, k इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय r इंटू r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r। ऐसे लिख सकते। अच्छा एक बात और बताओ, ये कभी कभी अपन इसमें ऐसे भी लिखते हैं -mgh, कभी कभी लिखते हैं +mgh, इसका कोई रोल होता है क्या? सर वो जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि अगर गिर रहा है तो माइनस लिख देंगे और ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस लिख देंगे, वो उस पर डिपेंड करता है पार्टिकल। हाँ सर गिरते टाइम प्लस होगा। हाँ सर, गिरते सर गिरते टाइम पॉजिटिव उल्टा बोला, अच्छा, तो फिर गिरते टाइम पॉजिटिव होगा और और ऊपर जाता टाइम अपोज ठीक है, करेगा। तो मुझे ये पता चल गया गिरते टाइम प्लस होगा। तो तुमने मुझसे ये कहा है कि अगर अट्रैक्शन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, गिरते टाइम कहा ना तुमने माइनस। सर, पॉजिटिव। गिरते टाइम प्लस। सर अट्रैक्शन के समय पॉजिटिव होगा और रिपल्शन के समय नेगेटिव। लो भाई, अब आपने कहा अट्रैक्शन होगा तो मतलब पॉजिटिव होगी और रिपल्शन के टाइम नेगेटिव होगी, ठीक है, अपन ऐसे मतलब बता देंगे, कोई बात नहीं। अब वो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि अभी कोई मतलब कैसे मैंने पहले जो कहा उसको मैं बताऊंगा। फोर्थ पॉइंट अब अपन लिख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अपने केमिस्ट्री के टर्म्स में मतलब बताना होगा, तो मुझे क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा फिजिक्स वाला पार्ट मैंने इसलिए फॉर्मूले करके लिखा कि फिजिक्स वाले पार्ट को अपन फिजिक्स के टर्म में लिखें। अच्छा ठीक, फिर अपन केमिस्ट्री के टर्म में मैं कर लूंगा अपना। तो अब अपन मान लो मैंने लिखा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, बताओ भाई लीनियर मोमेंटम P से डिनोट करते हैं अपन लीनियर मोमेंटम, mv मास इनटू वेलोसिटी, बिल्कुल mv लिखते हैं अपन भाई, mv लिखूंगा मैं, और बाकी आपको पता है वो m क्या है v क्या है। और एंगुलर मोमेंटम भाई, लीनियर मोमेंटम का मतलब तो ये हो गया कि एक पार्टिकल ऐसे है, इधर से ऐसे लीनियरली जा रहा है, और एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि उसका एक सर्टेन एंगल से वो ऐसे सर्कल में जो होता है उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो इनर्शिया इनटू लिखते हैं ना वेलोसिटी, तो अपन कहेंगे एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू mv, और फिर रेडियस भी होगा ना इसका, क्योंकि जहां ये सर सर्कल कैमरा
कैमरा अच्छा तो दिख रहा है यार बिल्कुल। हाँ, अरे यार आज इसका पता है ये कहीं ना कहीं हिल जाता है, तभी होता है ऐसे। अरे एक मिनट ऊपर देखना, अभी तो मैं हिला रहा हूँ यार, तब भी नहीं हो रहा है। फिर कैसे हो रहा है? मैं इसकी एप्लीकेशन बहुत ढूंढी यार मैंने, अगर नहीं मिलेगा ना तो चेंज करेंगे, अपन दूसरा लेंगे। चलो कभी कभी मैं ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ज्यादा, हाँ मतलब काफी। आज सुबह से पता है, आज सुबह से बिल्कुल भी नहीं हुआ। तुम्हारी क्लास में आके होता है, पता नहीं क्यों, मुझे ये समझ में नहीं आता। कभी आज सुबह मॉर्निंग में क्लास जो था ना, एक भी बार नहीं हुआ। फिर जो क्लास 9 o'clock से था ना 11:30 तक, उसमें एक बार हुआ। और अभी अपन देखते हैं, लेकिन मैंने एक बात ऑब्जर्व किया ना, जब वो हिल जाता है ना, टेबल अगर हिलता है तो फिर वो ऐसे करता है। तो ठीक है, इसलिए मैं दूर रहता हूँ उस टेबल से। चलो ठीक है, ये करते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो अपन को क्योंकि एप्लीकेशन खत्म करनी है ना, इसलिए एंगुलर मोमेंटम अपने पास एमवीआर होता है। चलो भाई ठीक है, एंगुलर मोमेंटम मतलब ऐसे एंगल में स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा होता है तो अपन एमवीआर एमवी होता है, और अगर ऐसे सर्कुलर ऐसे होगा तो एमवीआर होता है। दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये फॉर्मूले इतने मेरे लिए काफी है। अच्छा ठीक है, अब बताओ तुम, अगर मेरे पास दो एटम के बीच में बॉन्ड है और मुझे अगर इनको ब्रेक करना है, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी लिबरेट होगी? देनी पड़े। देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर मैं किसी चीज को तोड़ना चाहता हूं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। यस सर। ठीक है, और अगर मुझे बॉन्ड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनको तोड़ने से एनर्जी देनी पड़ती है, तो इनको जब जोड़ूंगा तो एनर्जी लिबरेट हो। लिबरेट हो। सीधी सीधी बात है ये। आप वैसे ही बोल देते हैं सर कि जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी लिबरेट होगी, जब बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी यूज होगी, वो हमको पता है। ठीक है भाई। अच्छा एक छोटा सा पार्ट और करते हैं। अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज, इनको पास लेके आऊंगा तो बताओ इनमें रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन होगा? रिपल्शन। रिपल्शन। ओके, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्शन। अट्रैक्ट। ऑब्वियस सी बात है, अपन कहेंगे अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो अपन थोड़े से फॉर्मूले अपन को पता है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह वो सब अपन को थोड़े से फॉर्मूले अपन ने लिखे, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अपन को पता है। अब देखो इधर, इधर आता है, पता, इसको मैंने एक चार्ज पार्टिकल ले लिया और मेरे पास ये अल्फा पार्टिकल, मैं ये अल्फा पार्टिकल को इसकी तरफ फेंकने वाला हूँ, बम्बार्ड करने वाला हूँ न्यूक्लियस पे। करो, अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो अल्फा पार्टिकल को जब मैंने बम्बार्ड किया, अगर मान लो कोई भी पार्टिकल है अपने पास है, उस पार्टिकल का किसी दूसरे पार्टिकल से ना कोई अट्रैक्शन है और ना ही कोई रिपल्शन है, इसका ना तो कोई अट्रैक्शन होगा ना ही इसका कोई रिपल्शन होगा, तो इसकी एनर्जी जो होगी ना, तो अपन कहते हैं भाई फ्रीली मूविंग बॉडी की एनर्जी कितनी होती है? अच्छा बताओ, एस्ट्रोनॉट यूनिवर्स में ऐसे फ्लोट कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या होगी? जीरो। जीरो, जीरो होती ना? ये बोला भी किसी ने, क्यों? हाँ जीरो होती है सर, क्योंकि फ्रीली मूविंग बॉडी अगर कोई होगी ना तो उसकी एनर्जी हमेशा जीरो होगा, उसका किसी के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फ्रीली मूविंग पार्टिकल विल बी जीरो, इसकी एनर्जी जो होगी वो जीरो, राइट? एनर्जी ऑफ फ्रीली मूविंग बॉडी विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। मैंने इसको ना इसकी तरफ बम्बार्ड किया। हाँ बोलो। सर ये फ्रीली मूव कर रहा है। हाँ, इधर उधर जब फ्रीली मूव कर रहा है, जब अगर इसके पास वो पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा तो इससे रिपल्शन होना चाहिए। जब इससे रिपल्शन शुरू होगा तो बताएंगे अपन की भाई इंटरेक्शन शुरू होगा। जब कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, तो फिर फ्रीली मूविंग बॉडी। ओके सर। मतलब अब अपन ऐसे करेंगे ना, हमने तो इसको इसकी तरफ फेंका था, लेकिन इससे इसका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। अपन ने कहा भाई देख, जब आपने फेंका था ना तो इधर आके इसका इंटरेक्शन हुआ, पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे आके इसके साथ इसका रिपल्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, तो दोनों का क्या होगा? रिपल्शन शुरू होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब यहां पर बहुत स्पीड से आ रहा था, इधर इसको इससे इंटरेक्शन महसूस हुआ कि यार इधर ना, उधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, और मैं इस तरफ जा रहा हूं पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो जब अपन इसको बम्बार्ड किए, यहां से इसकी एनर्जी जीरो थी, और यहां पर क्या होगा? यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे जैसे अपन इसको इसकी तरफ लेके जाएंगे, बताओ इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। कम होगी।
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज की तरफ ले जा रहे हो तो वो इसको रिपेल कर रहा होगा, जितना ज्यादा ये पास आएगा इसको उतना ज्यादा रिपेल करेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये पार्टिकल जैसे जैसे इसके पास जा रहा है इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। मान लेते हैं कि ये यहां आके इसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि उससे कोलाइड तो कर नहीं सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। अपन ने कहा देखो भाई ये यहां तक ही आ सकता है, बस यहां आके इसको रुकना पड़ेगा। तो अपन क्या कहेंगे, दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं इसको लिख लूंगा द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको हटाते हैं, ये z अपन को पता है z क्या है, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको r0 से बना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अपन कहेंगे ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है भाई, भाई इससे ज्यादा पास नहीं जा पाएगा, यहां आके ये रुक गया। ठीक है मान लिया। अच्छा फिर से ऑब्जर्व करते हैं, अपन कहेंगे देखो भाई जब आप इसको पढ़ा रहे हो तो आप ये बोल रहे हो कि यहाँ तो फ्रीली मूविंग बॉडी थी, इसकी एनर्जी 0 थी और ये बहुत स्पीड से इसकी तरफ आ रहा था। यहां इसको यहां पर इस पॉइंट पे आके ये अल्फा पार्टिकल को इससे रिपल्शन शुरू हुआ, फेस हुआ, और जैसे जैसे ये इसकी तरफ जा रहा है इसका वेलोसिटी कम होता जा रहा है, इसका वेलोसिटी कम होता जा रहा है, क्योंकि रिपल्शन बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस कम होने की वजह से। ये कम होता जा रहा है क्योंकि रिपल्शन बढ़ता जा रहा है, यहां जाके वो रुक गया। यहाँ तो बड़ा स्पीड से आ रहा था, यहाँ जरा स्लो हो गया, यहाँ स्लो होते 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 यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया। तो बस वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उससे ज्यादा पास नहीं जा सकता वापस। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, इन दोनों में ये क्यों रुक गए दोनों, तो अपन कहेंगे भाई इसलिए रुक गए क्योंकि वो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, उनमें रिपल्शन हो रहा होगा। जैसे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल उसके पास जाएगा, ये अल्फा पार्टिकल खुद भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो जैसे जैसे उसके पास जाएगा उसका रिपल्शन होगा इससे, तो इसका स्पीड स्लो होगा तो यहाँ आके रुक जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जीरो। अपन कहेंगे इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, क्योंकि बहुत स्पीड से आ रहा था ना, ये तो फ्रीली मूविंग, हाँ। सामने कुछ भी नहीं Yes, था। sir. यस सर। वो पूछ रहा जेडी क्या है, हटा ही देता हूं, बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी 0 मिनिमम ना, चल 0 ही बोल देता है, शुरुआत ही थी वहां से। नेग्लिजिबल। बिल्कुल। इधर काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट 0 नेग्लिजिबल। 0 पोटेंशियल एनर्जी maximum. मैक्सिमम लिख देते हैं। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, यहाँ काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट 0, उधर जाके सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि यहां पर जो आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख रहे हो, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ना, मैं ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक Yes, sir. एनर्जी है ना, उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रही होगी यहां पर। किसी को डाउट है तो बोलो। और No, sir. इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और बाद में जो यहां पर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल वहां जाके रुक गया, और यहां पर मैक्सिमम, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां होगी ना, वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैं कहूंगा देख भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो दोनों मिला के इनिशियली थे ना, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देख लो भाई फाइनली कितना हो गया।
फाइनली कितना हो गया वो देख। होगा ना कंजर्वेशन लॉ? यस बस जितनी एनर्जी थी उधर जाके वो चेंज हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चा बात करते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी। कितना, किसका काइनेटिक एनर्जी है? मास और वेलोसिटी किसका? अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्ट ये 0 और इधर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 और ये कितना हो जाएगा? लिख दूं? दोनों पे चार्ज है, इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है और दोनों में डिस्टेंस R0 है। अभी बताया आपने फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है अगर चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो। इसका चार्ज मैंने Q1 ले लिया, इसका चार्ज मैंने Q2 ले लिया। किसी को डाउट है क्या? अगर है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर एक बार फिर से समझाना हो लास्ट वाला। लास्ट वाला पार्ट फिर से समझा दूं? यस सर। तो मैं ये वाला लिखा रहने देता हूं, कंजर्वेशन वाला। एक बात बता रहा, अपन ने क्या किया, मेरे पास यहाँ जो टोटल एनर्जी थी ना इसकी, तो यहां तो मूव कर रहा था तो काइनेटिक एनर्जी थी, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं। तो अपन ने कहा भाई ये मूव कर रहा है, इसके पास अगर कोई एनर्जी हो सकती है तो वो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रिपल्शन जस्ट शुरू हुआ, फ्रीली मूविंग नहीं था। फ्रीली मूविंग होता तो अपन 0 ही रखते तब तक, इसके पहले तक अपन ने 0 रखा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जस्ट यहां पर आने के बाद इससे इसका इंटरेक्शन शुरू हुआ तो एनर्जी शुरू हो गई। तो अपन कहेंगे इंटरेक्शन शुरू हुआ मतलब नेग्लिजिबल पोटेंशियल एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब ये जैसे जैसे इसकी तरफ जा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है और पोटेंशियल बढ़ती जा रही है। यहां आके ये रुक गया तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। और इन दोनों में क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्शन होगा। अगर दोनों में रिपल्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो एनर्जी दो पार्टिकल के इंटरेक्शन से अपन पढ़ते हैं उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अपन ने मैक्सिमम लिख लिया। तो अपन ने कहा भाई ठीक है, आप ये बताओ कि कंजर्वेशन लॉ फॉलो कर लेते हैं। भाई इधर टोटल कितना था, इधर टोटल कितना था, कंजर्व होगा ना, क्योंकि यहां वाले एनर्जी को ही तो यहां कन्वर्ट किया आपने। तो यहां क्या था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नियरली 0। यहां क्या है, काइनेटिक एनर्जी नियरली 0, सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो ऐड कर दो, इनिशियली कितनी थी, फाइनली कितनी। तो अपन ने ऐड कर दिया भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल कितने थे और फाइनली कितने, ये इनिशियल आ गया, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली कितना है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इनिशियली क्या था, काइनेटिक एनर्जी था मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल के पास, एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 था। और अब काइनेटिक एनर्जी यहां पर 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। और दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हेन दे आर सेपरेटेड विद R0, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R0, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ सर हम्म सर वो इनिशियली वो आपने वो के ई लिखा है ना, उसके उधर क्या लिखा है, मैक्स है या इनिशियल है? मैक्सिमम था। ओके सर। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो सर, Q1 Q2 का वैल्यू हमें पता है। वो कैसे, हमें दोनों के न्यूक्लियस में कितना कितना चार्ज है पता है। भाई इसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है हमें पता है, इसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है हमें पता है। तो जो मैंने Ze लिखा था ना, Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन दिस एटॉमिक नंबर एंड E इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो कितने प्रोटॉन है मल्टीप्लाई कर दो E से, E इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एक ही बात है। E लिखो, दैट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसके न्यूक्लियस में भी मुझे पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है और इसका चार्ज, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है और इसका चार्ज, दोनों को अलग अलग कर लो जरा। इसके लिए Z1 ही कर देता हूं, इसके लिए Z2 ही कर लेता हूं।
Z1 क्या है, Q1 का वैल्यू। अल्फा के लिए Z का वैल्यू 2 होता है एटॉमिक नंबर और E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर Z अगर गोल्ड है तो Z2 उसका एटॉमिक नंबर होगा मल्टीप्लाई बाय एक प्रोटॉन का चार्ज, और एटॉमिक नंबर मतलब कितने प्रोटॉन से न्यूक्लियस। तो अपन क्या कर सकते हैं, अल्टीमेटली अपन लिख सकते हैं यहां पर दैट इज हाफ इंटू m अल्फा v अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो जीरो है इधर, k इंटू Q1 कितना हो जाएगा, दैट इज Z1E, और Q2 कितना हो जाएगा Z2E, और डिवाइडेड बाय R नॉट। दिस इज द इक्वेशन व्हिच इज फॉलोइंग द कंजर्वेशन। अगर आप थोड़ा सा ये लिख लो तो फिर मैं आपको बताऊं कि मतलब Z1 मैं वहां पर लिख देता हूं ना कि M क्या है, V क्या है, ताकि आपको पता रहे कि सर ये फॉर्मूला तो लिख दिया है क्या, ये तो बता दो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं m अल्फा इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वो अपन को पता है 4 mu होता है। v अल्फा इज वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, k तो कांस्टेंट है 9 इंटू 10 की पावर 9 उसका वैल्यू होता है k का, और यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और न्यूटन है तो MKS यूनिट लिया होगा आपने। Z1 एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, Z2 एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल जिसपे अपन अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कर रहे हैं, आर नॉट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देख लो भाई, आप पहले आराम से लिख लो, मैं आपको वापस समझाऊंगा, फिर एग्जाम्पल भी दूंगा कि तुम सॉल्व करके दिखाओ उसको, तब तो 100% समझ में आएगा ना कि अच्छा ये है। हो गया, सर वो k का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वाला पार्ट हटा सकता हूं मैं, एक मिनट सर। चलेगा, तुम लोग आराम से लिख लो, अभी तो बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सर ऐसे हम लोग ने अगर कोई और पार्टिकल बॉम्बार्ड किया तो फिर ये Z1E में उसका रिस्पेक्ट। बिल्कुल, अपन उसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ओके सर। अभी मैं क्वेश्चन भी देने वाला हूँ ना, अभी तो बहुत कुछ बताऊंगा इसमें, आप लोग लिख लो बस, फिर अभी समझ में आएगा कि अच्छा अच्छा ठीक है,
इधर वाला पार्ट हटाऊं, और इसमें E नहीं लिखा मैंने है, E is equal to 1.602 10 के पावर -19 कूलम्स m के यूनिट ना, E का वैल्यू। सर फॉर्मूला रब कर सकते हो आप? ये वाले, अच्छा ठीक है, चलो इतना ही काफी है मेरे लिए, अपन देख लें। पहले अपन एक एग्जांपल करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जांपल करते हैं। शुरू करें? यस सर। ठीक सर है, वेट, देख ये तो गोल्ड फॉइल भी हो सकता है, कॉपर फॉइल भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, ये तो अपन को पता है। गोल्ड ही ले लेता हूं, गोल्ड अपन मतलब, वैसे तो कॉपर भी ले सकता हूं, तो मैं शुरू करता हूँ। हाँ चलो, हो गया ना, सब लोग कर लिए, तो फिर मैं एक्सप्लेन करूं। हाँ सर। यस सर। चलो, मैं अज्यूमिंग कि सब लोग मतलब कर चुके हैं खत्म, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मुझसे कहा गया कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, बताओ कौन सा न्यूक्लियस लूं, कॉपर या गोल्ड? गोल्ड। गोल्ड चलेगा। मेरे पास एक यहाँ पर गोल्ड न्यूक्लियस है। अब गोल्ड न्यूक्लियस है तो अपन को पता है इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन इजिकल टू होता है 79, उसका एटॉमिक नंबर, अपन को पता है कितने प्रोटॉन है उसमें। तो मुझसे पूछा गया कि बताओ भाई, विथ व्हाट वेलोसिटी दिस अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है, with what velocity this alpha particle should be bombarded towards the gold foil। मुझसे कहा गया कि भाई वेलोसिटी बताओ, with what velocity this alpha particle should be bombarded towards the gold foil so that it will reach at a distance of, so that it will reach at a distance of, so that it will reach at a distance of closest approach 10 to the power of -13 सेंटीमीटर। मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिख के भी बता दो। कैलकुलेट with what velocity, the alpha particle must be bombarded towards toward gold nuclei so that it reaches to a distance of -10 की पावर -13 सेंटीमीटर। गोल्ड का एटॉमिक नंबर बताया मैंने, और बाकी आपको पता है। मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा मुझे सर ने बताया कि भाई देख, हाफ mv² अल्फा पार्टिकल, ये सर ने बता रखा है, इज इक्वल टू k इंटू Z1e इंटू Z2e।
तो ई स्क्वायर कर देता मैं z1 z2 करके डिवाइडेड बाय आर नॉट, ये सब ने मुझे बताया। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम क्या करोगे, एक तो तुम यूनिट में गलती करने वाले हो जिसकी वजह से सर आंसर आपकी आवाज हम्म? क्रैक कुछ गड़बड़ हो रहा है? नहीं सर, सब सही है। चलो, तो अपन लिखेंगे 1/2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है, उसको कन्वर्ट करो केजी में, इनटू लिखेंगे अपन क्या 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ये है केजी, ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है। वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करना है अल्फा पार्टिकल का, क्योंकि आपने कहा ना विद व्हाट वेलोसिटी, दैट विल बी इक्वल टू, अब अपन देखेंगे के 9 इंटू 10⁹, ये आपने लिखा क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा है, मतलब एमकेएस यूनिट है। Z1 आपको पता है कितना है, Z1 हो जाएगा अल्फा पार्टिकल, उसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और Z होता है, मैंने आपको प्रोटॉन 79, और E हो जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। सर आरएचएस नहीं समझ, सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो आरएचएस? ये सर जो वाला, मास है केजी में लिया है ना और क्या, तभी तो 10⁻⁻, ये किया मैंने। सर, पर हाँ वो सर। ग्राम में होना चाहिए ना। अब ग्राम में लेगा तो फिर एमकेएस यूनिट लो सारा, इसको मैं फिर एमकेएस यूनिट, मतलब ये भी एमकेएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर ग्राम में लेंगे तो। अगर अपन इसके मास को ग्राम में लोगे तो वेलोसिटी भी अपन को मतलब सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर इनको, ये तो एटॉमिक नंबर्स हैं, और इसको भी आपको किस में लेना पड़ेगा फिर, सेंटीमीटर में, वैसे गिवन है वो सेंटीमीटर में, तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो एमकेएस कैलकुलेशन, क्योंकि फिर अपन को इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो आप, तो अपन एमकेएस सारे कैलकुलेशन अपन एमकेएस में करेंगे, बाद में ऑप्शन ओके चेक सर। करेंगे। तो मुझे वेलोसिटी स्क्वायर चाहिए, के का वैल्यू अपन को गिवन है 9 इंटू 10⁹, Z1 मुझे पता है कितना है, अल्फा पार्टिकल आपने लिख रखा है, Z1 इज एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम। Z2 कितना है, दैट इज 79, मल्टीप्लाई बाय ई स्क्वायर कर लेते हैं अपन, तो ई स्क्वायर मतलब 1.602 10⁻⁻90 कूलम्स। लो भाई, ई स्क्वायर हो गया, और डिवाइड बाय करना है आर नॉट, आर नॉट कितना गिवन था ये, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 10⁻15 मीटर्स, तो 10⁻15। लो भाई शुरू हो जाते हैं, अब कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करना, कर दो कैलकुलेशन, कितना है आपके पास, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड आएगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करना। बोलो तो मैं कैलकुलेशन कर देता हूं, लेकिन आप लोग, मैं चाहता हूं आप लोग कैलकुलेट करो।
सर 1.60 और 1.66 को कैंसिल कर सकते हैं क्या? कर सकते हो। So 2.66 into 10 to the power minus to 20 to the power 17. 2 स्क्वायर आ रहा होगा। नहीं सर, v स्क्वायर तो 7.11 into 10 to the power 34 आया। ना 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 ना, अबे किसी की वेलोसिटी ऑफ लाइट से बड़ा ज्यादा थोड़ी आएगा। सर वी स्क्वायर आया 11 into 10 raised to power 50। v स्क्वायर आया 11 into 10 की पावर 15 ना। हाँ सर। हाँ वो हो सकता है। सर अभी उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा क्या? वो तो हो जाएगा, बड़ा इजी है ना। 11 का रूट लेना है और 10 की पावर 15 ना, तो उसको 110 करके ले लो ना। 110 करो और 10 की पावर 14, सो 10 की पावर 7 और 110 के लिए 10.2 ले लो। सर 1.06 into 10 to the power 8। 1. हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, वही जो ये कर रहा है वही कर रहे हैं तुम भी, सही है, दोनों का एक जैसे। बाकी बच्चों को भी मैं कैलकुलेशन का टाइम दूंगा थोड़ा सा, वो लोग कैलकुलेशन सीखें। हाँ सर अप्रॉक्स वैल्यू कुछ 10.5 into 10 raised to 14 आ रहा। v स्क्वायर ना। नहीं सर मुझको लगता है मैंने वो स्क्वायर रूट में गलती की। कुछ गड़बड़ किया, चलो अच्छा देखते हैं ना। मैं चेक करूं क्या, मतलब कुछ बताओ। ये और ये कैंसिल कर दिया मैंने। मैं थोड़ा सा मतलब लिखूंगा अभी, है मतलब अब 1.66 इंटू 27 और 15 जरा ऐड कर देता हूं, है ना। 42 आएगा मेरे पास, तो 10 की पावर माइनस 42 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आया 9 इंटू 79 इंटू 1.6, 16 इंटू 16 256 होता है ना, इंटू 10 टू द पावर ऑफ 38 और एक 10 की पावर 9 भी है। यहां से 10 की पावर माइनस 4 बचा, ये पूरा कैंसिल हो गया। v square is equal to 9 into 79 into 2.56 into 10 की पावर 9। ये 4 है तो उधर 13 कर देता हूं, उधर नीचे लेके गया ऊपर लेके आया 13 आ गया, और डिवाइड बाय 1.66 करता हूं। ये और ये कैंसिल कर देता हूं 1.5 से, थोड़ा बड़ा था उसको थोड़ा छोटा था तो इसलिए ऐसे कट गया। 1.5 इंटू 9 करता हूं तो 13.5, इसको 8 ले लेता हूं, 8 और 40 120 आ जाएगा। 120 इंटू 9 कर देता हूं, 10.8 के आसपास आ रहा है, 108 के आसपास आ रहा था मेरे पास। मैंने इसको 1.5 इसको क्या किया 13.5 और इसको 80 ना,
तो अपन क्या कर लें, उसको थोड़ा ज्यादा आ रहा है अपने पास, तो कितना बचा अपने पास? सर वो 10⁻⁻42 कैसे हो गया? 10⁻42 ये था ना? LHS। ओके सर। 10. ये मेरे पास 10⁻13 आ रहा है, मैं उसे 10⁻14 करूंगा, ये v स्क्वायर है। सो 106.6 इंटू 10⁻14 आया। देखो जरा अगर किसी को डाउट है तो 100 का तो रूट लेना मुझे आता है, तो मैं इसको 10.2 इंटू 10⁻7 कर देता हूँ मीटर पर सेकेंड, या 1.02 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड लूंगा। दैट विल बी नियरली मीटर पर सेकेंड मेरा आंसर आएगा। देखो जरा अगर किसी को डाउट है तो कैलकुलेशन सर मेरा हाँ 10.5 इंटू 10⁻7 है। चलेगा ना, उतना तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा सा वो राउंड ऑफ किया था, पैनल कैलकुलेशन में थोड़ा ऐसे जाएगा। तो अब एक बात देखो, आपको मैंने सर थोड़ा बोलो। सर वो पूरा मल्टीप्लाई करने की जगह मतलब जैसे 9 है 10 की पावर्स है और 79 इंटू 1.5 जो है ना वो 121 के थोड़ा क्लोज आया था मेरे को, तो फिर मैंने उसको डायरेक्टली रूट में डाल दिया, उसकी वैल्यू चलेगा निकाल दी। चलेगा, तूने भी तो आंसर यही बताया था 10.5 के आसपास। हाँ सर। हाँ तो चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। अभी बोला ना, किसी और ने भी पूछा था मुझसे कि सर वो 10.5 चलेगा क्या, मैंने बताया ना हाँ हाँ चलेगा, कोई बात। अच्छा देखो, ओके सर। अपन को क्वेश्चन समझ में आया ना, क्या बोला था मैंने? यस यस सर। सर। ठीक है, अब जरा इसको देखो, इसको तो मैं हटाता हूँ, इसको देखना है जो जरा मैंने फॉर्मूला जो लिखा था, हाफ इंटू एम अल्फा वी अल्फा का स्क्वायर इंटू के z1 इंटू z2 इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर नॉट। पहले तो मैं ये पूछ लूं, किसी को डाउट है क्या इसमें? कैलकुलेशन में क्या डाउट होगा, लेकिन फिर भी पूछूंगा। आपको क्वेश्चन भी समझ में आया था अच्छे से। अब एक बात देखो तुम, इस पार्ट में ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। आप बस ये बता दो किस न्यूक्लियस की बात कर रहे हो, उसका एटॉमिक नंबर तो आप दे ही दोगे। तो Z2 मुझे पता है, Z1 एटॉमिक नंबर हीलियम का होता है, मास हमेशा अल्फा पार्टिकल का होगा तो अल्फा का हो जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास, K तो कांस्टेंट है, Z1 Z2 कांस्टेंट है, E का वैल्यू आप चेंज कर नहीं सकते, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप थोड़ी चेंज कर सकते हो उसे। तो बचा क्या मेरे पास फॉर्मूले में? मेरे पास फॉर्मूले में बचा V अल्फा का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R नॉट, ये बचा वैल्यू। तो अपन कहेंगे अच्छा, तो इतना ही रिलेशन बता दो ना आप मुझे, कि जितना स्पीड से इसको उसकी तरफ फेंकोगे उतना ही ज्यादा पास तक जाएगा। क्यों? और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जितना ज्यादा स्पीड से आ रहा होगा उतना ही पास तक ये जाएगा, मतलब जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही छोटा ये डिस्टेंस आएगा। अगर वेलोसिटी कम है तो वो फिर वेलोसिटी कम है तो जल्दी रिपल्शन, पहले ही वेलोसिटी कम है तो दूर तक जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। मतलब अगर वेलोसिटी कम है, जैसे अपन फेंकते हैं ना कोई पार्टिकल्स है, जैसे अपन को एक बात पता है कि घर में अपन बॉल से खेलते हैं, बॉल पे मारा तो अगर स्पीड ज्यादा होगा तो बॉल पे वो ज्यादा बाउंस करेगा, बाउंस बैक करेगा। तो जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा पास तक जाएगा ये, अगर स्पीड कम है तो दूर से ही वो वापस आएगा, रिपल्शन। तो इसका मतलब है अगर वेलोसिटी ज्यादा है, आपने जो इसको कोलाइड करना है उधर भेजा जो वेलोसिटी को, तो उतना ही छोटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। तो हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल एग्जैक्टली नहीं है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे है कि वी अल्फा जो है दैट इज 1/रूट ऑफ आर नॉट है। भाई स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लगाना पड़ेगा ना अपन को, इस टाइप से, राइट?
तो अपन इसको आर नॉट ऐसे बता सकते हैं अपन। ठीक है, तो अब अपने पास एक क्वेश्चन आया है, सर जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी इधर मतलब अपने पास काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया था और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया था। यहां पर काइनेटिक एनर्जी अपने पास मैक्सिमम था और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है हो जाता है, होता नहीं पहले ही था, उसके बाद भी वो दोनों रिपेल होंगे ना? नहीं, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, तो वो क्यों नहीं काउंट करते? मतलब कौन सा पोटेंशियल एनर्जी काउंट करना है? जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा तो इधर मैक्सिमम रिपल्शन अपन वही तो काउंट कर रहे हैं, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है उसकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे। तो फिर क्या काउंट करना है? अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया तो फिर क्या काउंट करना है अपन को? फिर क्या काउंट करना है भाई? इधर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया ना, तभी तो आर नॉट ले रहे हैं कि इस डिस्टेंस पे कितना आर नॉट है। वही तो रिपल्शन काउंट कर रहे हैं, उसी रिपल्शन को तो अपन पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं कि दो चार्ज जब इस डिस्टेंस पे हैं तो उनके बीच में कितना रिपल्शन है, उसी को तो ले रहे हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई। सर बोलो। सर फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा एटम लेते हैं Z2 की जगह जिसका मतलब जिसमें प्रोटॉन्स भी कम है, तो उसका ओवरऑल चार्ज भी थोड़ा मतलब रिपल्शन का कैपेसिटी भी कम होगा, और अगर एकदम हाई वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया तो वो उसको कोलाइड हो सकता है? नहीं, एकदम कोलाइड नहीं होगा, वो ये वैल्यू छोटा हो जाएगा, वो बहुत पास आ जाएगा। इसमें अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है तो फिर वो बहुत पास तक आ सकता है, क्योंकि बहुत पास आने के बाद ही वो रिपेल करेगा। सर कोलाइड कभी नहीं कर सकता? नहीं, दो चार्जेस है ना, कैसे कोलाइड करेंगे पॉजिटिव चार्जेस, है ना? अब आप बोलो कि नहीं मैं तो एक प्रोटॉन लूंगा और अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन है तो और उसको फेंक के मारूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो कोलाइड कर ही जाएगा। तो दोनों चार्ज है, कोलाइड करके रिपेल हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। कोलाइड तो अपन कर ही सकते हैं, क्योंकि अपन बोल ही रहे हैं ना कि अगर वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम होगा। मैं वेलोसिटी इतनी बढ़ा दूंगा कि कोलाइड हो ही जाए तो ठीक है, वरना तो न्यूक्लियस टूट जाएगा ये अगर कोलाइड होगा। हाँ सर, फिर उसका न्यूक्लियस भी वही टूट जाएगा ना? हाँ, टूट सकता है ना, बिल्कुल टूट सकता है। न्यूट्रॉन मार के अपन वो करते हैं ना, न्यूट्रॉन को मार के बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं जो, हाँ सर। है ना? तो ओपन कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आपका एप्लीकेशन था। आपको पता है कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे तो आर जो है वो 4 टाइम्स, रूट ऑफ 4 टाइम्स, मतलब रूट ऑफ 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर आप रेडियस मतलब अगर इन दोनों में कुछ भी चेंज करोगे तो एक में चेंज करोगे, दूसरे कैसे चेंज होगा वो अपन यहां से बता सकते हैं प्रोपोर्शनली। वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी पार्ट कांस्टेंट है। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस मतलब ये इस टाइप का कंसेप्ट अपन से, अब रदरफोर्ड को खुद भी नहीं पता था बेटा उसको ना कि मतलब वो बेचारा क्या क्या बता रहा है, यही सारा पार्ट यूज करके तो बोर ने उसको, बोर को नोबेल प्राइज मिल गया। हाँ बिल्कुल, अगर अपन स्पीड को बढ़ाएंगे, मतलब कभी कभी ऐसा होगा ना वेलोसिटी को डबल करेंगे तो बताओ रेडियस कितना हो जाएगा, कोई बात, वेलोसिटी को आप डबल करो, अगर वेलोसिटी को डबल करोगे तो रेडियस जो होगा रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, रूट ले लेंगे अपने कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेशियो बना लेंगे ना अपन ऐसे, देख आप ना ऐसे कर देना फिर इसको देखो कि भाई v1 स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो v2 स्क्वायर ये इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल ले लेना है। तो v1 अपन v2 जैसे ही लिख लो ना, काहे वक्त में अपन ऐसे करें, v1 स्क्वायर अपन v2 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 अपन r1। तो v1 पहले वेलोसिटी 1 था, बाद में आपने डबल किया तो रेडियस इनिशियली कितना था, बाद में कितना हो गया वो अपन बता देंगे। तो रेशियो लेके बता देना, ऐसे कैलकुलेशन कर देना कि अगर वेलोसिटी में चेंज करोगे तो आर में कितना चेंज आएगा, बाकी कांस्टेंट है ना वहां पर इनवर्सली, तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। सर वेलोसिटी को स्क्वायर किया तो? वेलोसिटी तो है ही स्क्वायर। नहीं सर, वो वाले रिलेशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये उसमें वाले अगर वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी स्क्वायर किया तो डिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर क्लोज, किया तो वो तो पहले से ही स्क्वायर है। सर उसको अगर स्क्वायर किया तो किसको? सर उसका जो भी v स्क्वायर है, कर दें, जितनी हाँ वेलोसिटी की सर, उसका भी स्क्वायर कर दें तो 4 टाइम्स हो जाएगा फिर तो।
तो सर फिर वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 4 टाइम्स कम हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे अपन क्यों करें, मान लो अपन ने, मेरे पास वेलोसिटी v है और बाद में मैंने वेलोसिटी को v2 को कर दिया 2v, तो बताओ रेडियस कितना हो जाएगा। तो अपन कहेंगे पहले रेडियस r0 इक्वल टू 1 था, तो r2 बताओ कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेट कर देंगे ना। पहले v1 कितना था, v डिवाइड बाय 2v, तो इसको करेंगे स्क्वायर, ये है स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया r0 r2 मुझे बताना है, r1 नॉट आपने वो r1 को 1 ले रखा है, ये मुझे कैलकुलेट करके बताना है। तो r2 कितना हो जाएगा, तो अपने पास आ गया v स्क्वायर अपॉन 4v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया r2 अपॉन r1। तो ये तो अपने पास 1 गिवन था, तो अपन क्या करें, ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है r2 इज इक्वल टू हो गया 1/4। ये लो भाई, अपने पास r2 आ गया 1/4, तो r2 का वैल्यू जो होगा वो 1/4 हो जाएगा जितना ये था, मतलब ये 1/4 हो गया, मतलब 4 टाइम 1:3 का। इधर पहले कितना 1 था ये, अब कितना बचा, वो 0.25 बचा, मतलब ये बहुत पास चला गया अगर अपन वेलोसिटी को डबल करेंगे तो। ओके सर। समझ गया ना, इसलिए मैंने ये लिख के बताया, क्योंकि इसमें तुम लोग गड़बड़ ना कर दो, इसलिए मैंने उसको लिख के बताया कि भैया वैसे कैलकुलेट कर लेना, बता देंगे अपन, कोई बात नहीं होगी गलती, अपन को क्या है, ऐसे कर देंगे और कैलकुलेट करके बता देंगे। ये था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब अपन को बोर मॉडल पढ़ने से पहले थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, रेडिएशंस वगैरह की बात करनी होगी, फिर अपन बोर मॉडल की बात करेंगे। उससे पहले अब तुम लोगों को मतलब हार्ड कॉपीज मिल गया है,